Welcome back, student. I am Santosh Misra, your account teacher, and we are studying the chapter dissolution of partnership firm, and all the journal entry and pro forma have been covered. And in this video, I am going to discuss very important question. This is a full-fledged question of the dissolution. So, in question number 6, A and B were partner, sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. Sundry creditor, is it visible to all or not? Sundry creditor, this is the question. A and B were partners sharing profit and the loss in the ratio of 2:1. Sundry creditor 1,10,000, general reserve 90,000. A's capital, general reserve will distributed between the partner in their profit sharing ratio, that is 2:1. And in the partners capital account, A's loan account is 50,000, interest rate 12%. These are all liability and these are assets. So in asset, cash at bank account, debtor, provision for doubtful debt, stock, investment, PL. All these assets are recorded in the asset side of the balance sheet. So first of all, realization account, we are preparing realization account as well as partners capital account, A's loan account, B's loan account and cash account. In realization account, all the assets will recorded at their book value. So cash and bank balance of 60,000 will be recorded in the debit side of cash account. To balance BD. Sir, please zoom in. To balance BD. Zoom in, sir. Please zoom in. 60,000. Sundry debtor 1,80,000. So 1,80,000. Sundry debtor. Stock 2 lakh, investment 1,50,000 and plant and machinery 4 lakh. सारे एसेट को हमने टू सन्ड्री एसेट करके और हमने क्या कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दिया. टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट इज 9,30,000. डेटर is for the 1,80,000 and debtors of 1,80,000 less provision for doubtful debt. Provision for doubtful debt is given in the question worth rupees 10,000. So we always record the full value of the book value of debtor in the debit side of the realization. हम लोग डेबिट साइड, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 1,80,000 फुल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे. यदि कोई प्रोविजन रहेगा तो वो क्रेडिट साइड में आता है 10,000. ओके. अब हमारे सारे एसेट जैसे कैश अकाउंट में चला गया, डेटर यहां आ गया, स्टॉक भी डेबिट में आ गया रियलाइजेशन के, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, प्लांट एंड मशीनरी भी आ गई. बीज का लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट इज गिवन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. दैट इट इज द एसेट फॉर अस बिकॉज फॉर्म गिवन टू द लोन टू बी. सो टू बैलेंस बीडी 20,000. टू बैलेंस बीडी 20,000. तो सारे एसेट साइड के जो है कहीं ना कहीं चले गए और आपका ये सारा एसेट साइड क्लोज हो गया, क्योंकि ये सबका डेबिट बैलेंस रहता है और इसको क्लोज करने के लिए हमने इसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया होगा. इसलिए यहाँ जब हम रियलाइजेशन का लेजर बना रहे हैं तो सब ऐसे ऐसे करके आ गया. तो सबसे पहले हमने एसेट को क्लोज किया. अब लाइबिलिटी की बात आती है तो सन्ड्री क्रेडिटर 2,10,000. अब लाइबिलिटी को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बाई सन्ड्री लाइबिलिटी 2,10,000. जनरल एज लोन अकाउंट
तो एज का लोन अकाउंट जो है इट इज सोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। एंड एज लोन अकाउंट, जब हम ए का लोन अकाउंट बनाएंगे तो बाई बैलेंस बीडी हमने 50,000 इसको भी दिखा दिया। जो लायबिलिटी में है वो या तो इधर आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, किसी भी अकाउंट के किधर आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। तो क्रेडिटर आ गया, ये हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया, ए का लोन था वो आ गया। फिर जनरल रिजर्व है 90,000, तो जनरल रिजर्व कैसे कंप्लीट करेंगे? जनरल रिजर्व आपका पार्टनर कैपिटल में आता है, तो जनरल रिजर्व पीएसआर में बढ़ जाता है। पीएसआर कितना था सर? 2:1, तो 2:1 में बढ़ गया 60,000 30,000। अब कैपिटल का बैलेंस शीट है, बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख और 2,50,000, 4 लाख एंड 2,50,000। तो ये कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी करके हमने शो कर दिया। सारा बैलेंस शीट क्लोज हो गया, सारा बैलेंस शीट क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब एडजस्टमेंट पर आते हैं। Partners decide to dissolve the firm on the above date. Asset and liability are realized as follows. First adjustment is plant and machinery was taken over by A at 60% of the book value. तो प्लांट एंड मशीनरी का कितना बैलेंस था? 4 लाख। 60% बुक वैल्यू पे ए ने इसको ले लिया। If partner taken over any asset, it should be credited in the realization account. What will the entry? A's capital account debit to realization account. That's why by A's capital account 2,40,000. अब ये 2,40,000 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ चुका है। अब पार्टनर ने, जब ये एसेट है, अब हम क्या करते हैं, एसेट की बात कर रहे हैं, तो अब इस साइड में यदि एसेट बिकता है तो बाई कैश बैंक करके बेचते हैं, और यदि कोई पार्टनर लेकर चला जाता है तो इस साइड में दिखाते हैं। तो बाई एस कैपिटल अकाउंट 2,40,000। अब ए के कैपिटल अकाउंट में आएंगे और 2,40,000 देखेंगे, 2,40,000 यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। 2,40,000। ए ने जो 2,40,000 का जो प्लांट एंड मशीनरी ले लिया था 60% पे, उसको मैंने यहां पे दिखाया, और ए का कैपिटल अकाउंट को मैंने रिड्यूस कर दिया। मतलब ये यहां है, यदि आप कैपिटल अकाउंट नीचे बनाते तो ये इधर आता। कहां था? टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,40,000। अब इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाई बी एट 120%। अब इन्वेस्टमेंट 120% से बी ने ले लिया। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब भैया ये आपका बच्चों क्या हो गया? बाय बीस कैपिटल अकाउंट 1,80,000, 1,80,000 इसने क्या कर लिया है? आपका स्टॉक ले लिया है, इन्वेस्टमेंट ले लिया है 120% पे। इन्वेस्टमेंट कितना था? 1,50,000। 1,50,000 इंटू 120% इज इक्वल टू 1,80,000। बी ने स्टॉक ले लिया। अब जब वो स्टॉक ले लिया तो उसका भी कैपिटल को हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। तो टू रियलाइजेशन लिखे 1,80,000। एसेट टेकन ओवर, इफ एसेट टेकन ओवर पार्टनर, देयर कैपिटल अकाउंट विल बी रिड्यूस्ड 1,80,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड बैलेंस इन कैश। क्रेडिटर 2,10,000 का था, 75% इसका स्टॉक के रूप में वो हुआ। तो जैसे क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय देम गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। तो स्टॉक कितने का था? 2 लाख। 2 लाख का 75% कितना हो गया? 1,50,000। ये स्टॉक हमने उनको दे दिया। अब बचा कितना? 60,000। ये हम कैश में पेमेंट करेंगे। तो जो पेमेंट किए उसको ना हमने एसेट की वसूली इधर दिखाई ना पेमेंट दिखाया, तो बस हम जो 60,000 हमने उसको कैश में पेमेंट किया उसी को हमने यहाँ पे डेबिट साइड में दिखा दिया। टू कैश अकाउंट क्रेडिटर 60,000, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर 60,000। एंड in next adjustment, debtor realized 20% less of the amount due from them. Debtor से debtor का amount कितना है? 1,80,000. Debtor realized at 80% of the book value. Then by cash account debtor 1,44,000. Debtor 1,44,000. So this is in the credit side of the realization account 1,44,000, and this will come in the डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक।
to realization 1,44,000. When cash is increasing, it should be debited. So कैश यदि आ रहा है तो डेबिट करेंगे 1,44,000. एज लोन अकाउंट वाज पेड अप विथ इंटरेस्ट ऑफ 6%. तो ए का लोन अकाउंट जो है अब वो 6% इंटरेस्ट से पे करेंगे. तो इसका इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट 3,000. 50,000 इंटू 12%, 50,000 इंटू 12% इंटू 1/6/12 इज इक्वल टू 3,000. 3,000 इसका इंटरेस्ट है. इसका इंटरेस्ट रियलाइजेशन अकाउंट में भी आएगा. टू इंटरेस्ट ऑन एज अकाउंट, एज लोन अकाउंट 3,000. अब इनका हम पे कर देंगे. जब पे करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट 1 लाख, ये 53,000 ये कैश अकाउंट. हमने पेमेंट कर दिया. पेमेंट करते ही हम तुरंत इसको अपने कैश बुक में आएंगे और जो काम जैसे ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको हम यहाँ पे आके पे करेंगे. क्या लिखेंगे? बाई एज लोन अकाउंट 53,000. बाई एज लोन अकाउंट 53,000. ओके. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000. अब रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000. ये पेमेंट हुआ है. पेमेंट हुआ तो इसको भी हम तुरंत कैश अकाउंट में जाएंगे और ये 1,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ. यहाँ क्रेडिटर को 60,000 का पेमेंट किए थे, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया. तुरंत आगे यहाँ पे यहाँ कैश गई है. व्हेन वी पेड टू द क्रेडिटर कैश विल रिड्यूस. दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग द in the cash account by realization account 60,000. okay. So now एज लोन अकाउंट का पैकअप हो चुका है. ओके. बीज लोन अकाउंट 20,000. बी का लोन अकाउंट 20,000 का ओपनिंग बैलेंस था. इसको इसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि ये पे करने की कोई बात नहीं हुई है. इसका आप कैपिटल अकाउंट ये आ गया. टू बीज लोन अकाउंट 20,000. अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. टोटल किया 994,000 एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन is 2,10,000 and it will distributed between the partner A and B in their ratio PSI in their PSR. Then 1,40,000, 70,000. This will come in the credit side of the partners, debit side of the partners capital account. To realization, this is a loss. Then 1,40,000, 70,000. Realization पे लॉस हुआ तो पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी. 1,40,000, 70,000. अब पेमेंट की बात होगी. टोटल करने के बाद 460, 280, इससे इन दोनों को जब डिडक्ट करेंगे तो 80,000 ए को पेमेंट करना है, 10,000 बी को पेमेंट करना है. टू कैश अकाउंट 80,000 एंड 10,000. ये 80,000 और 10,000 यहाँ पर आ जाएगा बाई साइड में. तुरंत पोस्टिंग होगी. क्या लिखी होगी? बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीज कैपिटल अकाउंट. 80,000 एंड 10,000. 2,04,000 और 2,04,000 ये कैश का बैलेंस टैली कर गया. दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6. इट इज वेरी फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ द realization of the dissolution. Hope you are understanding all the concepts. So thank you student, thank you so much.